Hello everyone. So in the previous class I introduced a topic recurrent neural network. There is a reason for it. We want to perform text processing and text is a sequential data. It comprises of syntax and semantics. So if we want to use any model over text, it should understand the context of the text. Without understanding context, using any model to perform interpretation is not a good idea. For that, I told if you want to perform processing of sequential data, we have to use recurrent neural network. So, recurrent is different from feed forward neural network in terms of its use, that is recurring, repeating. Okay, so it's not like feed forward, it is repetitive. In order to manage the past data and the present data so that it can maintain data in sequential way. Okay, so we are using recurrent neural network because machine learning and artificial neural network struggle with sequential data because they require fixed size inputs. Also, they don't have ability to understand the context of the data. They are not at all suitable. They treat features independent and they are unable to capture a relationship between the terms which are present in the sequential data. Okay. Suppose if we use zero padding concept in which shorter sequences are padded with zeros at the end to reach the length of the longer sequence in the batch. What does it mean? See, you may have long sentences present in the data, you may have short sentences present in the data. So the length of matrix which you will make will be according to the long sequence. That means whatever be the words, okay, whatever be the words, unique words which are present in the text, you are going to take it here as an individual features, and you have to put their values as 0 or 1. If in a particular sentence a word is coming, so 1, not coming 0. So if the sentence is short, less words are there, so rest of the words will be 0. So there will be irrelevant zeros in the shorter sentences, and there will be no actual learning over the data. In fact, this will be behaving as a computational overhead for a model.
So due to non sequence in machine learning and artificial neural network, neither context nor sequential interpretation is done. No information is captured properly. That's why they fail. If any user give input higher than the size what is expected, for example, the output is of 5 words but the user gave 15 words, at this time ANN can't handle such a data. So there are many failures. These are the drawbacks of machine learning and artificial neural network, that it is difficult for them to interpret sequential data. For that, we require another architecture, another model who can perform the im- implementation, interpretation of sequential data. So, I have a story based upon RNN. So, this story is Hindi, let me tell you, about a village in school, गांव का स्कूल. So, RNN क्या होता है? What is this RNN? ये मैं आपको इस स्टोरी के हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा. मान लीजिए एक छोटे से गांव में एक स्कूल के अध्यापक हैं. देयर इज अ टीचर इन अ स्कूल. स्कूल इज इन विलेज. स्कूल में बच्चों की कक्षाएं होती हैं और हमेशा उन्हें नई नई कहानियां सुनाई जाती हैं. ऑब्वियसली इन स्कूल देयर आर क्लासेस एंड एवरी टाइम दे हैव बीन टॉट न्यू स्टोरीज. नई नई कहानियां, न्यू स्टोरीज हैज बीन टॉट टू देम. ओके, तो फिर क्या हुआ नेक्स्ट? आपकी कहानियां बच्चों को पसंद आती हैं. ओके, द स्टूडेंट्स डू लाइक द स्टोरीज, क्योंकि आप हर कहानी में कुछ नया जोड़कर बताते हैं. दे आर नॉट बोरिंग, दे आर नॉट सेम. एवरी टाइम दे आर न्यू बिकॉज यू आर गोइंग टू ऐड समथिंग. ओके, अब सोचिए कि आपके पास एक खास दिमागी खेल है जो आपकी कहानियों को दिलचस्प बनाता है. इस दिमागी खेल को रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कहते हैं. दैट मीन्स यू हैव अ ब्रेन which makes this thing interesting always, every time. And this interest making capability is recurrent neural network. Now, क्या मीनिंग हुआ इसका? आपने बोला गांव है, स्कूल है, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, रोज नई नई कहानी सुना रहे हो, तो यहाँ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कहाँ से आ गया? आ गया, देखिए कैसे आया, मैं बता रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर ओके डे वन. दिस इज योर डे वन. ये आपका इनपुट है. ओके, दिस इज योर इनपुट. You give this to a neuron. Neuron will produce an output. Okay, it will produce an output. This is another neuron. Now you are in day 2. This is another input. So in this neuron, I am taking previous data and I am also taking the data of day 2. So on day 1, if I don't have any previous data, so let us suppose this is my initial day number 1. I don't have anything. Let us suppose 0. I don't have anything in that. And on day number 1, I started my story.
Okay, I started my story. Day number one. Whatever be the outcome came, I gave to the next neuron. I saved this output in form of hidden state, and I gave this thing to the next neuron. And on that day, I started telling the new instances of the story. Then again, whatever be the outcome came, I kept them in a hidden state and new input I gave. So on daily, I am adding something new. Check this line. क्योंकि आप हर कहानी में कुछ नया और मजेदार जोड़ते हैं. So on every day, I am adding something new. Every time I'm adding something new. And I am also keeping the previous data in concern. Whatever be the previous output, I'm taking that also, and I'm adding new input also. And this is the new output I'm getting every time. Such type of network is recurrent neural network. ओके, ये देखो कैसे बन गया. और हर दिन स्कूल में बच्चों को एक नई कहानी सुनाई जाती है. एवरी डे अ न्यू स्टोरी इज बीन टोल्ड टू द स्टूडेंट्स. मान लीजिए आज आप एक कहानी सुनाते हैं जिसमें एक राजा, एक घोड़ा और एक जादूगर है. कहानी की शुरुआत राजा के घोड़े को खोजने से होती है. जादूगर की मदद से अंत में घोड़ा मिल जाता है. ओके, यू आर हैविंग अ किंग, a horse, and magician. The story starts with finding horse of the king, and at the end of the story, we found the horse with the help of magician. This is the story of day number one. Okay, day one. अब आप सोचते हैं कि आप कैसे अपनी अगली कहानी में पिछली दिन की कहानी को जोड़ें. How you are going to add this thing in your next story? That means day number two. You want to continue the story. Now you have to add some instances by keeping this in concern. इसी कहानी, क्योंकि सिक्वेंशियल डेटा है ना, आगे 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 जुड़ता चला जाएगा ना, तभी तो सिक्वेंशियल होगा. तो आगे आगे जुड़ते चला जाएगा. तो क्या हुआ कि आपने नई कहानी जोड़ी, घोड़ा मिल गया. उसके बाद आप युद्ध पर चले गए, युद्ध लड़े, जीत गए. ये दूसरे दिन की कहानी. दैट मीन्स यू फाउंड द हॉर्स. Day number two starts. The king went to the fight, and at the end, king won the fight. So this is day number two, and I gave the input as going to fight and won the fight. And the previous was this story. Okay, so this is the way RNN works, but in a very special way. Okay, in a very special way. पहले दिन क्या हुआ? You start with your story, बच्चों को बताकर कि राजा और घोड़ा फिर से एक नई यात्रा पर निकलने वाले हैं. इस तरीके से आरएनएन को आप इनपुट देते हैं. दैट इज कॉल्ड एज एक्सटी. यू गिव एन इनपुट टू द आरएनएन. फिर यहां पर होता है एक हिडन स्टेट, यादों का खजाना. पिछले दिन की कहानी में घोड़े के बारे में जो कुछ भी आपने बताया था, वो सब आपको यहां पर याद रखना है हिडन स्टेट में. You have to remember all the instances which you have told on the last day, so that on day number two you can continue your story. तो जो समय के साथ पिछली
जानकारियों को याद रखता है उसे अपडेट करता है। अब डे नंबर 2 पर जो भी होगा वो पिछली जानकारी के साथ याद रखा जाएगा, और फिर जो डे नंबर 3 पर होगा, डे नंबर 2 की यादों को डे नंबर 3 में हैंड ओवर कर दिया जाएगा, और डे नंबर 3 में जो भी कुछ नया होगा वो उसके अंदर जोड़ दिया जाएगा। ओके, सो यह राजा और घोड़े की यात्रा की पिछली जानकारी को समेटे हुए है हिडन स्टेट। जब आप नई कहानी शुरू करते हैं, यह हिडन स्टेट पिछले दिन की कहानी के तत्वों को नए दिन की कहानी में जोड़ देता है। भाई अलग कुछ नहीं बता रहा हूं, बड़ा आसान सी चीज बता रहा हूं, वेरी सिंपल। तो कहानी में नया मोड़ आएगा, अगले कदम पर हम जाएंगे, नया मोड़ आएगा, आप कहानी को आगे बढ़ाएंगे। राजा और घोड़े के सामने नई चुनौतियां, जैसे कि मैंने बोला, लड़ाई पर गए, जीत कर आ गए, फिर कुछ होगा नया, हम अपडेट करते रहेंगे हिडन स्टेट को, और हर समय जानकारी को संभाल कर रखेगा अपने पास, वो ये काम करेगा। ठीक है, सो कहानी की शुरुआत का सर आउटपुट, जैसे आपकी कहानी में अंत में बच्चे नई सीख के साथ घर जाते हैं, आरएनएन में आपको ये आउटपुट मिलेगा जिससे भविष्य की भविष्यवाणी की जाती है। यानी आउटपुट ऑफ द आरएनएन के आधार पर ही जो पुरानी जानकारियों को निष्कर्ष निकाला जा सकता है, निकाला जाएगा। ओके, सो YT is the output. All right, so let me share my entire screen and I hope आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा कि आरएनएन हालांकि मतलब कर क्या रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो बात इतनी सी है, यहां पर आप बड़े ध्यान से सुनिए, समझिए, आसान है। लेट अस सपोज दिस इज योर डे नंबर 1। okay, I am having a neuron. Initially I don't have any previous output to be given to this neuron, so let us suppose the hidden state here is 0। मतलब पुराना कुछ है ही नहीं, याद है आज पहला दिन है, आज से कहानी शुरू करेंगे। तो भाई मैंने आज एक कहानी सुनाई, पुराना कुछ था नहीं, तो हिडन स्टेट 0 है, कुछ याद रखने लायक था ही नहीं, तो हिडन स्टेट 0 है। देन डे नंबर 1 इज ओवर, whatever be the output I am getting, that will be this. Now hidden state is having a value, now hidden state is having a value HT, because day number 1 is over and you have told a story to the students। बताइए, आपने उसको कहानी बताई है बच्चों को। ठीक है, अब डे नंबर 2 शुरू हुआ, तो जो पुरानी कहानी थी HT डे नंबर 1 की, वो आप एज एन इनपुट दोगे, और नई कहानी जो आप बच्चों को बताओगे वो भी एज एन इनपुट दोगे, दोनों इनपुट दोगे। डे विल बी ओवर, डे नंबर 2 होगा आपका। ऑल राइट, ठीक है, एंड आफ्टर डे नंबर 2 you are getting new hidden state. So hidden state will keep on updating, it will keep the story which was happened on the previous day, ये उसको याद रखेगा, तभी इसका नाम हिडन स्टेट है। और फिर आप डे नंबर 3 पर आ गए, आपने यहां फिर नया कुछ जोड़ा, तो पुरानी बातें याद थी, नया और जोड़ दिया, एट द एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस आउटपुट YT, ये मिल रहा है आपको। दिस इज हाउ RNN वर्क्स। So previous and the current input are added to produce the output. This is how recurrent neural network works. Okay. And as usual, we do perform back propagation. Okay. Back propagation.
to update weight and the bias parameters of the neurons, ताकि हमारी जो लॉसेस हों, हमारी ट्रेनिंग जो है वो हो। ठीक है, लॉसेस को रिड्यूस करना है एंड ट्रेनिंग प्रॉपर करनी है हमें। तो बैक प्रोपोगेशन में वी आर गोइंग टू अपडेट और एडजस्ट वेट एंड बायस। ये करते हैं, ये तो न्यूरल नेटवर्क में भी करते थे, एएनएन में, फीड फॉरवर्ड में, वो यहाँ भी करना है। ओके, that thing we have to do here also. So what is the mass? I will tell you ahead. So those points now are mentioned here. Okay, अगर आपकी कहानी में कोई गलती होती है, आप अगली बार बेहतर तरीके से कहानी को सुनाते हैं। दिस इज व्हाट द बैक प्रोपोगेशन इज। ओके, सो आई एम गोइंग टू रिड्यूस द एरर। वो ये तो बोल रहा है कि आपकी कहानी में गलती हो। गलती क्या होती है? एरर होती है, लॉस होता है। यदि हो तो उसको फिर अपडेट करो और फिर से सुनाओ। ओके, तो आरएनएन अपनी पिछली अनुभव से सीखता है, अपने पैरामीटर्स को सुधारता है ताकि भविष्य में बेहतर प्रदर्शन कर सके, फॉर बेटर परफॉर्मेंस। सो द समरी इज इस तरीके से आरएनएन एक शिक्षक की तरह है जो हर दिन की कहानी से सिखाता है और उसे अगली कहानी में ऐड करता है। यह समय के साथ जानकारी को समझाता है और याद रखता है, जिससे वह पिछली अनुभवों से भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है, यानी प्रिडिक्शन कर सकता है कि अब कहानी में नेक्स्ट क्या होगा। We can perform the prediction. All right, fine. So these are the terms which are used in the RN. इनपुट है नई कहानी का पहला दिन, हिडन स्टेट है पिछले दिन की कहानी की यादें, आउटपुट है नई कहानी की भविष्यवाणी, और बैक प्रोपोगेशन है जब आप ट्रेनिंग करोगे। ओके, एंड फिर लॉसेस आएंगे तो उसको आप रिड्यूस करोगे, तो बैक प्रोपोगेशन में ही पैरामीटर्स एडजस्ट होंगे। ओके, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। फाइन। So I hope you understood by this diagram and what I explained related to the recurrent neural network. Okay, fine. तो ये जो हिडन स्टेट है, आप देखें पहले तो in the first case I don't have anything, it is 0. I gave input as xt, so the output will be wx plus a b bias, ये होना चाहिए। ये y होगा, और y बोले तो मुझे लग रहा है ये नया वाला ht होगा। दिस इज न्यू ht, अपडेटेड है ये, अपडेटेड हिडन स्टेट। तो पहले तो कुछ नहीं था उसमें, अब ये अपडेटेड आ गया, wx प्लस बी अपडेटेड आ गया, है ना? ये होता है ना, wx प्लस बी तो होता है वेट इनटू इनपुट प्लस बायस। ऑलराइट, फाइन। अब इसमें आप आगे एक्टिवेशन फंक्शन लगा दो, इसमें ht दे दो, यू आर गोइंग टू गेट द फाइनल आउटपुट, एंड दिस विल बी गिवन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। इसको दे दो, अब आप इसको दे दो, और यू अगेन टेक अ न्यू इनपुट, नया भी ले लो। ये डे नंबर 2 की बात है, ठीक है। सो नाउ एक्टिवेशन फंक्शन में रखने के बाद मुझे जो भी मिला फाइनल रिजल्ट, ओके, लेट अस सपोज h डैश t, ये मिला मुझे। नया इनपुट है x डैश t, नई कहानी। अगेन आउटपुट क्या मिलने वाला है आपको? सो ये तो पुराना था, ये नया इनपुट है, तो आई विल बी हैविंग वेट इनटू x डैश t प्लस बायस प्लस ये पुराना वाला भी ऐड करो,
h dash t, that will be h double dash t. ये आई है इक्वेशन, ये पढ़ा आपने कि पुराना वाला हिडन स्टेट, this information will be added to the new, that will be the output of day number 2, and then you have to give it to, इसे आप अगेन दे दीजिए एक्टिवेशन फंक्शन को. So whatever be the result you are going to get, let us suppose h triple dash t, ये रिजल्ट मिला. ठीक है, कोई बात नहीं, डे नंबर 3 पर आ जाओ. सो डे नंबर 3 में आप ये तो दो गई h ट्रिपल डैश टी एज एन इनपुट, अब एक नया इनपुट भी दे दो. ओके, डे नंबर 3 में एक नया इनपुट है, दैट इज x डबल डैश टी. ठीक है, ये है. तो what will be the result I'm going to get? W weight into x double dash t plus bias plus ये पुराना वाला h ट्रिपल डैश t, ये मेरे पास आ जाएगा नया आउटपुट. That's what I need to remember. And this I'm again going to give it to the activation function, दे देना पड़ेगा मुझे, तो मुझे एक नया आउटपुट फिर मिलेगा. ये कंटिन्यू चलता रहेगा. दिस इज व्हाट हैपेंड हियर इन द रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क. कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है. मुझे नहीं लगता कि इतने इजी वे में कोई आपको समझाएगा, ये समझा पाएगा. बस हो क्या रहा है, थोड़ी सी समझने की बात है कि सीक्वेंशियल डेटा को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, जो हो नहीं रहा था ना ML से ना ANN से. That's what you want to do. You want to interpret a sequential data. That's not possible with ML and ANN. So you created RNN, repetitive, recurrent neural network. Okay, so recurrent repetition means, okay, whatever happened previously, I'm going to feed it again to the neuron. अभी तो मैं आपको एक एक करके न्यूरॉन बता रहा हूं, जब और आर्किटेक्चर खुलेगा, बातें आएंगी तो क्लियर होगा. ओके, सो आई एम गोइंग टू play a story. There will be something happen in the story. The day is over. Then on the next day, I want to continue my story. So whatever happened on day number 1, I need to add it to the day number 2, and I will start continue my story. मुझे यहीं से शुरुआत करना पड़ेगी कि कल आपने ये पढ़ा था. और आप खुद भी देखिए, मैं अपनी क्लास भी चालू करता हूं तो मैं बोलता हूं कि आपको मैंने क्या पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में. आई ऑलवेज इंट्रोड्यूस कि इन द प्रीवियस क्लास वी डिड स्टडी दिस थिंग, और फिर मैं आगे जो पढ़ाना है उस पर आता हूं. तो ये सिक्वेंशियल वे ही है ना, एक सीक्वेंस में चल रही है ना क्लासेस. ठीक है, तो ये भी वही कह रहा है कि आप ने जो भी पिछला था, जो आज के दिन करवाया, तो जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो डे नंबर 1, तो पिछला कुछ था नहीं, तो हिडन स्टेट में कुछ नहीं था तो 0 कर दिया. ये आज की कहानी जो आपने बोली, और फिर यहां से एक आउटपुट आया. ओके, आउटपुट आया. अब मुझे ये याद रखना है, तब ये हिडन स्टेट है. ओके, आई नीड टू रिमेंबर इट. सो दैट विल बी केप्ट इन अ मेमोरी, हिडन स्टेट में रखा जाएगा याद. और नए दिन की कहानी शुरू करो इसी के आगे से. सिक्वेंशियल है ना, अब ऐसा तो नहीं वापस से यही सुनाओगे. तो ये जो पुरानी आपकी कहानी थी वो हो चुकी, अब आप यहां आगे नया डेटा देके अपनी कहानी को आगे बढ़ाओगे. ठीक है, ये हो जाएगी. फिर कुछ आउटपुट आएगा, फिर डे नंबर 3 पे कुछ नया ऐड कर दो. पुरानी बातें याद है,
तो इसी के आगे बढ़ा दो कहानी, ये चलते जाएगा। ये आरएनएन का काम है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का। ठीक है, ऑलराइट। तो ऐसे समझते हैं अपन आरएनएन को। अब आरएनएन में, इन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, वी यूज 10H एक्टिवेशन फंक्शन, आईएमपी। इंपॉर्टेंट है ये, आप ये बात ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूं। सी, इन नॉन सिक्वेंशियल डेटा, जैसे कि आपने मशीन लर्निंग, जो छोड़ो मशीन लर्निंग तो खत्म हो गई, वहां तो एक्टिवेशन फंक्शन वाली बात नहीं थी, सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ही सिग्मॉइड यूज होता था। ठीक है, वो तो छोड़ दो। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, एएनएन में और सीएनएन में, कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क में, जो एक्टिवेशन फंक्शन यूज होता है वो है रेलू। याद रखिएगा, वी डू यूज रेलू एक्टिवेशन फंक्शन इन नॉन सिक्वेंशियल डेटा, बट इन सिक्वेंशियल डेटा, इन sequential data, we use we use 10H activation function, that is hyperbolic tangent, hyperbolic tangent, इसको यूज करते हैं। रेलू यहां पर अच्छा काम करता है नॉन सिक्वेंशियल में, सिक्वेंशियल में नहीं। रेलू के बारे में आप जानते हैं, रेलू इज एन एक्टिवेशन फंक्शन जिसमें यदि इनपुट नेगेटिव होता है तो आउटपुट जीरो होता है। ओके, इफ द इनपुट इज नेगेटिव, आउटपुट इज जीरो, एंड व्हेन द इनपुट इज पॉजिटिव, देन द आउटपुट इज सेम। ये होता है रेलू एक्टिवेशन फंक्शन। ऐसे बनाते हैं अपन रेलू को। लेकिन हाइपरबोलिक टेंजेंट जो होता है, 10H एक्टिवेशन फंक्शन जो होता है, वो -1 से +1 के बीच में होता है, जीरो सेंट्रिक होता है ये। ओके, यानी कि ये नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज दोनों को इंटरप्रेट करेगा। ओके, और भी बातें हैं इसकी, मैं बताना चाहूंगा। देखिए, व्हाई वी डू यूज हाइपरबोलिक टेंजेंट एक्टिवेशन फंक्शन in sequential data, because it output the range of values between -1 to +1, which makes it as zero centric. This helps in mitigating the issues related to data bias towards positive values, leading to more efficient training. मतलब ऐसा नहीं है कि हम पॉजिटिव वैल्यूज को ही प्रेफरेंस दें, नहीं, ये वाली बात नहीं। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को मिलेगा प्रेफरेंस, जीरो सेंट्रिक है ये। ठीक है, तो उसके पास नेगेटिव वैल्यूज बोथ विल बी गिवन प्रेफरेंस। यदि आप ग्रेडियंट निकालोगे, डेरिवेटिव निकालोगे 10H का, तो वो ये आएगा 1 माइनस 10 2x। ओके, पावर लिखा है तो 10 स्क्वायर आप ले लो, हाइपरबोलिक 10 स्क्वायर x, ऐसा करके कुछ आ रहा है। अब आप बोलोगे सर ये कहां से आ जाएगा, तो भाई 10x का फॉर्मूला है, बता रहा हूं अभी। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, सो डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा। तो भाई वो कह रहा है कि ग्रेडियंट निकालने पर ऐसा आएगा, दैट इज नाइदर टू लार्ज नाइदर टू स्मॉल, ना तो इतना छोटा ना इतना बड़ा होता है। सो दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ग्रेडियंट्स ड्यू टू रीजनेबल रेंज, विद इन रीजनेबल, मतलब मैनेज करते चलो, ग्रेडियंट को आप मैनेज करते चलोगे, विच इज क्रूशियल फॉर बैक प्रोपोगेशन थ्रू बीपीटीटी, बैक प्रोपोगेशन टाइम। यानी आप ग्रेडियंट आपको मिलते रहेंगे, आपका नेटवर्क लर्न करता रहेगा, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ग्रेडियंट कैलकुलेट होंगे तभी मान के चलो कि मॉडल लर्न कर रहा है। If you are calculating the gradients and the gradients are coming, there is a change, then only the you have to think that no, no, your model is learning and training is going on. Okay, नॉन लीनियर है ये नॉन लीनियर है।
ओके, ये भी कुछ इसी तरीके से दिखता है, ऐसा करके। ये आता है +1 से -1 के बीच में, ये 0 से कटते हुए निकलता है। ओके, +1 टू -1 नॉन लीनियर, तो ये तो मुझे चाहिए था। डेटा में नॉन लीनियरिटी तो कैप्चर करनी है मेरे को। जितने भी एक्टिवेशन फंक्शन है सब नॉन लीनियर, और हम चाहते ही हैं, क्योंकि रियल डेटा में कोई इट्स नॉट मैंडेटरी दैट वी आर हैविंग लीनियर रिलेशनशिप्स इन द डेटा, होते ही नहीं। ज्यादातर नॉन लीनियर रिलेशनशिप होती है, लीनियरली तो आसान से कैप्चर हो जाएगी इजीली, नॉन लीनियर कैप्चर करना है। टू लर्न द कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप इन द डेटा वी वांट दैट आवर मॉडल शुड लर्न नॉन लीनियरिटी। ठीक है, तो ये नॉन लीनियर होता है, इसके कई फायदे ये गिना दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो भाई बात इससे क्या समझ में आई? ये समझ में आई कि -1 से 0 के बीच में और 0 से 1, तो ओवरऑल -1 से 1 के बीच में आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो जाएंगे, नॉन लिनियरिटी मेंटेन रहेगी, ग्रेडियंट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इससे अच्छा एक्टिवेशन फंक्शन कहां मिलेगा? ओके, एंड भाई खास बात ये है, ये देखो ये फॉर्मूला है इसका जो मैं बोल रहा था ना आपको, 10h का e की पावर x माइनस e की पावर -x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर -x। दिस इज फॉर्मूला फॉर 10h। ओके, और इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना, ये उसको डेरिवेटिव करोगे तो आपको ये मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ 10 हाइपरबोलिक x इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर, ओके, हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ये मिलेगा आपको। ठीक है, ये आपको मिलने वाला है। और कुछ बातें हैं 10h को लेकर, वो ये है कि देखिए आपका डेटा में जो भी वैल्यूज हैं, ओके, डेटा में वैल्यूज हैं, दे मे बी some हाई वैल्यूज, सम माइट बी लो वैल्यूज, लेकिन आप जब उसको 10h से पास करोगे, एक्टिवेशन फंक्शन 10h से पास करोगे, वो सब -1 से +1 के बीच में हो जाएंगे। यही एक तरीका है उसको नॉर्मलाइज करने का, यू आर नॉर्मलाइजिंग द डेटा। एक्टिवेशन फंक्शन करता क्या है? नॉर्मलाइज कर रहा है, बड़ी बात है, टेक्निकली समझे इस चीजों को। यू मे हैव वैल्यूज लाइक 225, 100, 10। अब ये 225 बड़ी वैल्यू है, ये भी बड़ी है, 10 तो छोटी है, लेकिन इन सबको मैं -1 से +1 के बीच में कर दूंगा, चिंता मत करो, जैसे मैं 10h से पास करूंगा, क्योंकि आप क्या करने वाले हो, WX प्लस बी, ये कुछ आउटपुट मिलेगा, इसकी वैल्यू 225 हो सकती है, 100 हो सकती है, 10 हो सकती है, यू कैन हैव एनी वैल्यू, माइनस हो सकती है, प्लस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा -1 से +1 के बीच में। तो मेरे पास स्पेसिफिक रेंज है, हमेशा ये बातें ध्यान रखनी। तो डेटा नॉर्मलाइज हो गया, नेगेटिव को भी प्रेफरेंस आई गेव, पॉजिटिव को भी प्रेफरेंस आई गेव, और ग्रेडियंट भी आसानी से निकल रहा है, कोई टेंशन नहीं। तो मैं 10h एक्टिवेशन फंक्शन प्रेफर करूंगा सिक्वेंशियल डेटा के इंटरप्रिटेशन में। ओके, फाइन। देन RNN एप्लीकेशंस, सी ये तो वही जो मैं समझा चुका हूं ना आपको, ये वही बता रहा है। I already told you about this thing. So, recurrent neural networks are class of artificial neural network designed to handle sequential data, learn from temporal dependencies. Okay, RNN process sequence of data by iterating through the data, maintaining a hidden state, capturing the information from the previous time step. ठीक है, तो मेंटेन रखो आप हिडन स्टेट को, और आगे का काम आप करो, उसको जोड़ते चले जाना। दैट्स व्हाट RNN डू। ठीक है, ये सारी बातें हो गई हैं, इनपुट हो गया, हिडन हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, फॉरवर्ड पास में क्या होता है, एट ईच टाइम RNN परफॉर्म्स द फॉलोइंग ऑपरेशन, कंप्यूट द हिडन स्टेट, वो नई हिडन स्टेट निकाल लेगा। ठीक है, सो हिडन स्टेट HC इज अपडेटेड एवरी टाइम, ये इनपुट है करंट वाला, ये पुराना वाला हिडन स्टेट।
ठीक है, यही मैंने बता दिया आपको, ये तो बता दिया। एक चीज थी जो, देखिए ये नया इनपुट है, इसको वेट के साथ मल्टीप्लाई करो और इसमें बायस जोड़ दो। ये पुराना वाला हिडन स्टेट है, इसको भी वेट के साथ मल्टीप्लाई करो, ये नहीं बताया था मैंने, ये भी एक इनपुट जाएगा ना आगे। ठीक है, दिस विल ऑल्सो बी गिवन एज एन इनपुट, तो इसके लिए भी एक वेट ले लो, वेट मैट्रिक्स फॉर हिडन स्टेट, इसका भी वेट ले लो। ये नए वाले इनपुट का वेट है, तो इनको इस तरीके से डील करो, बड़ा आसान है, कुछ नहीं। और बायस ऐड करते चलो। सो व्हाट आई टॉट यू वाज दिस थिंग, ये बताया था मैंने, इसमें एक वेट और मल्टीप्लाई कर देना जो हिडन स्टेट का होगा, ये वेट से मल्टीप्लाई करना, बस ये वही चीज है। और जो रिजल्ट आया ना, ये तो बता ही दिया था मैंने आपको, एक्टिवेशन फंक्शन में देना है, और वो होगा 10h, जो इसे -1 से +1 के बीच में कर देगा, बस नॉर्मलाइज कर देगा, बात खत्म। करते चलो। ओके, तो 10h यूज करते हैं अपन, इसको हटाओ। ठीक है, ये काम चलता रहेगा। ठीक है, ऑल राइट। तो ये भी बता दिया यहाँ पर, लॉस कंप्यूटेशन नेटवर्क परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड यूजिंग अ लॉस फंक्शन विच मेजर द डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट एंड द एक्चुअल। तो जो एक्चुअल है और जो प्रिडिक्टेड है, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो, ये होगा लॉस। ये होता ही, और क्या बोले, हमेशा ये लिया, दैट विल बी द लॉस। ओके, फाइन। बैक प्रोपोगेशन में ग्रेडियंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो भाई ग्रेडियंट कैलकुलेट करो। ठीक है, और ये ऐसे होगा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू। ठीक है, लॉस को डिफरेंशिएट, ये तो आपने देखा ही है ना, डीप लर्निंग में बताया तो था। तो न्यू वेट इज इक्वल टू ओल्ड वेट माइनस लर्निंग रेट इनटू डेल एल बाय डब्ल्यू। 50 बार इक्वेशन लिखी है ये वाली, ये तो लिख के दे रहा है वो आपको, इन केस ऑफ डीप लर्निंग, ये तो लिखा कई बार, वैसे ही कर रहा हो। ओके, हैंडलिंग द सीक्वेंसेस, हैंडलिंग, RNN कैन हैंडल सीक्वेंसेस ऑफ वेरिएबल लेंथ। ओके, डजंट मैटर व्हाट विल बी द लेंथ, वो हैंडल कर लेगा। ओके, इट विल परफॉर्म। ओके, ठीक है। देन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNN, कई टाइप के होते हैं, जैसे कि वेनिला RNN, दिस इज द बेसिक RNN विद सिंपल रिकरेंट कनेक्शंस, जो आपने अभी पढ़ा ना वो वेनिला ही है। फिर आएगा LSTM, ये खास है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। और आपको जो बता दिया ना, ये अच्छो अच्छों के पल्ले नहीं पड़ता, ये आर्किटेक्चर, ये बातें नहीं पड़ती पल्ले। ये LSTM और बाई LSTM और ये गेटेड रिकरेंट नेटवर्क कुछ नहीं समझ में आता। ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल इजी वे में बता दिया, बता दूंगा। और LSTM बाई LSTM, दिस विल आल्सो आई विल टीच। ठीक है, तो RNN जो है वो सिंपल अभी आपने पढ़ लिया, इसमें एक इशू होता है, जैसे जैसे सीक्वेंस बढ़ता जाएगा ना, सो यू हैव टू रिमेंबर लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज। ऐसी स्थिति में आपके जो ग्रेडेंट निकाल रहे हो ना, या तो वो एक्सप्लोडिंग हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे, या निपट ही जाएंगे। ठीक है, ये लफड़ा हो जाएगा। तो उसको दूर करने के लिए LSTM आया। ठीक है, देर इज एन इशू, ड्रॉबैक विद RNN एस। अब आप बोलोगे कि सर डे 1 की कहानी याद रखो, डे 2 की भी याद रखो, डे 3 की भी रखो, 4 की भी रखो, मान लो 100 दिन कहानी चल रही है, तो तुम 100 दिन की कहानी याद रखोगे पूरी। एक बात बताओ, आपको अपनी लाइफ में 10 साल पहले क्या हुआ था, क्या एक एक दिन का याद है क्या, कि क्या क्या हुआ था? खास बातें याद हो सकती है, सब थोड़ी ना याद रखोगे। तो RNN में तो आपने बोला सब कुछ याद रख बेटा, तो वो सब कुछ याद रखेगा क्या? एक्सप्लोड हो जाएगा वो, ये उसका ड्रॉबैक है। तो कोई भी चीज को मैथमेटिकली, कंसेप्चुअली, प्रैक्टिकली समझा जाता है। ये हवा में कहीं कोई आया नहीं है, ये कुछ भी कौन जो पढ़ रहे हो ना, कुछ नहीं, हवा में कुछ नहीं। हमारी लाइफ के जो फैक्ट्स हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस है, उसी पर ये सारी चीजें बनी हुई हैं। आपने नहीं सोचा, किसी और ने सोच लिया, इसलिए तुम पढ़ रहे हो, किसी और का सोचा हुआ उसने दे दिया, आप पढ़ रहे हो। आप सोच लेते हो,
फिर आपका पढ़ते। ठीक है, तो ये बात है, आरएनएन में इशू है। फाइन। सो लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी आई, एलएसटीएम आया। पहले तो मैं आरएनएन को और एक्सप्लोर करूंगा, उसके बाद फिर एलएसटीएम बताऊंगा। एलएसटीएम है, फिर बाई एलएसटीएम है, एंड देन फिर इससे और बेटर आर्किटेक्चर्स हैं, तो इनमें भी कमियां हैं। ठीक है, तो ये हम इंप्रूव करते चले जा रहे हैं। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक आ गए। अब आपने यहां से सिक्वेंशियल तो सीख लिया कि कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो एलएलएम्स बाद में आया है, पहले यहीं से शुरुआत हुई बातों की। ठीक। तो आरएनएन की वर्किंग जो है आपको बताइए अभी, ये डायग्राम भी है उसका, ये रहा। ठीक है, the diagram depicts a simplified sentiment analysis process using RNN. सैंपल टेक्स्ट इज असाइन टू सेंटीमेंट लेवल 0 और 1, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने एक टेक्स्ट दिया, उसमें सेंटीमेंट डिफाइन कर दिया, 0 है या 1 है, सेंटीमेंट आपने डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो लिखा होगा क्या, आई लव टू टीच एआई। ये पॉजिटिव सेंटीमेंट है, इसको 1 कर दो। बट आई हेट डूइंग मैथ्स, ये नेगेटिव सेंटीमेंट है, इसे 0 कर दो। ऐसा डेटा है आपको दिया। ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और टेक्स्ट है। तो सबसे पहले तो भाई ये टेक्स्ट को न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बोल रहा है वो, कन्वर्ट द टेक्स्ट टू नंबर्स। ताकि देखो, मशीन भैया अंग्रेजी फंग्रेजी नहीं समझती, मशीन नंबर ही समझती है, इनको नहीं आती। लेकिन अब आपने इतनी कलाकारी कर दी, ठीक है, एनएलपी से, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से, कि वो जो टेक्स्ट है वो न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट करने के बाद अब वो आपके न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन समझता है, तो वो आपकी भाषा समझता है, एंड विद दिस रिप्रेजेंटेशन ओनली वो आपकी लैंग्वेज में आपको रिप्लाई कर देता है। ठीक है, और बहुत सिंपल सी बात है, आप कीबोर्ड चलाते हो, तो कीबोर्ड में जो ए है, इसकी भी आस्की वैल्यू है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो कैपिटल ए की 65 होती है वैल्यू। जैसे आपने ए प्रेस करा ना, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 65 है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है वो, 0101 के फॉर्मेट में। ये सिग्नल होते हैं, ये सिग्नल जाते हैं सीपीयू के पास। सीपीयू समझता है कि भाई ये सिग्नल आए हैं, इसका मतलब ए है, तो वो आपको मॉनिटर पे ए छाप देता है। तो सब कुछ वो सिग्नल से ही होता है, वो सब ठीक है, न्यूमेरिकली है वो। यहाँ भी यही कह रहा है कि आरएनएन मॉडल को इफ यू वांट टू मेक इट लर्न टू अंडरस्टैंड, न्यूमेरिक में कन्वर्ट करो टेक्स्ट को, फिर देना आगे। तो भाई ये ऐसा कुछ बना है। आपको एग्जाम्पल दिया, टेक्स्ट में लिखा है कैट मैट रैट, रैट रैट मैट, मैट मैट कैट, ये कुछ दिया। तो भाई ऐसा है कि आपके टेक्स्ट में जो यूनिक वर्ड्स हैं, यूनिक वर्ड्स उनको निकालो। और पहले क्या होता है, मैं आपको बता भी चुका हूं शायद, और नहीं तो सुनिए भाई। टेक्स्ट के टुकड़े होते हैं, कभी डायरेक्ट नहीं होता कुछ भी, इसके टुकड़े होते हैं, टोकन्स बनते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन अ सेंटेंस दैट आई लव टू टीच AI. So it will be tokenized. I, comma, love, comma, to, comma, teach, comma, AI. टुकड़े होते हैं, टोकन बनते हैं। हर एक वर्ड एक टोकन की तरह काम करता है। तो आपके टेक्स्ट में जितने भी यूनिक वर्ड्स हैं, सबको लेना पड़ेगा। यूनिक वर्ड्स, रिपीटेटिव की बात नहीं कर रहा, यूनिक। तो आप जरा देखोगे उसका भी, कैट मैट रैट, रैट रैट मैट, मैट मैट कैट, तो उसके पास कौन कौन से यूनिक वर्ड्स हैं, कैट मैट रैट, ये 3 यूनिक वर्ड्स हैं उसके पास, 3।
ठीक है, ये 3 यूनिक वर्ड्स हैं। और जब पहला सेंटेंस आया, पहले सेंटेंस में है कैट, मैट, रैट, तो उसने सीक्वेंस माना कैट, मैट, रैट। पहला शब्द आया कैट, यहां मैट और रैट जीरो है, तो भाई ने क्या करा, कैट को 1 करा, मैट और रैट को 0 कर दिया। फिर आया मैट, तो कैट 0 है और रैट 0 है, मैट 1 है, देख लो। एंड देन फिर आया रैट, तो कैट और मैट 0 है, रैट 1 है। सो वट एवर बी द वर्ड गेम, उसको 1 करो, बाकी जो नहीं है उनको 0 करो। x2 में भी यही करा उसने। मतलब आपने टेक्स्ट को इंटीजर में न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या है, ये क्या है, ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके टेक्स्ट का। वो याद रखेगा कि भाई कैट का मतलब होता है 100, मैट का मतलब होता है 010, वो याद रखेगा। और रैट का मतलब होता है 001। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट कर दिया उसने इंटीजर में, आप देखो। और फिर सेंटीमेंट जो थे वो तो थी 110, तो थी ये टारगेट। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया टेक्स्ट न्यूमेरिक्स में, ये है टारगेट। एंड ये रहा यूनिक वर्ड का रिप्रेजेंटेशन। ओके, दिस इज द यूनिक वर्ड्स रिप्रेजेंटेशन। ओके, इतनी बात समझ में आई है, नहीं आई है, बताइए। ओके, दोज हु आर लिसनिंग टू मी फ्रॉम द स्टार्टिंग, आई होप दे अंडरस्टूड। ये शुरुआत से सुन रहे हैं, को समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ है,